واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 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 يعلمون الناس السحر 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 ولا يجعل الملكين باب محمد والمعروف ولا يولون من احد ولا يولون من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر 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 ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بصالحين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره خلاق ولبئس ما يشرون به انفسهم لو كانوا يعلمون واوحينا الى موسى ان القي عصاك فاذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وباطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا موسى تكون للحق لما جاءت وسير هذا لما جاءت وسير هذا وسير هذا وسير هذا وسير هذا وسير هذا لما جاءت وسير هذا لما جاءت وسير هذا ولا يفلح الفاعلون فلما أبوا قال موسى ما جئت بالسحر إن الله سيبطله إن الله
نکل خبیث نکلنا چاہتا ہے تو نکل اخرج يا عبد الله اخرج يا عبد الله يا مسافر اخرج يا عبد الله يا مسافر اخرج يا عبد الله يا مسافر اخرج يا عبد الله قال فاخرج يا خير قديم قال فاخرج يا خير قديم وإن عليك المال بين يوم الدين قال فاخرج يا خير قديم وإن عليك المال بين يوم الدين قال فاخرج يا خير قديم قال فاخرج يا خير قديم وإن عليك المال بين يوم الدين فاخرج لك المصابين فاخرج لك المصابين فاخرج لك المصابين اخرج منها اخرج منها مسلم مدحورا اخرج منها مسلم مدحورا اخرج منها كل الناصرين اخرج منها مسلم مدحورا اخرج منها كل الناصرين اخرج منها مسلم مدحورا اخرج منها مسلم مدحورا اخرج منها مسلم مدحورا اخرج منها كل الناصرين وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسن بعصاتهما فضربوا كل راس مسلما كل مسلم برزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين واتقوا خير الله الكتاب لن يكون لكم ذلك كفارا حسنا اللهم اغفر لمصائب الهدى اللهم اغفر لمصائب الهدى اللهم اغفر لمصائب الهدى اللهم اغفر لمصائب الهدى والمصائب الصدر يا جميع المدين اللهم اغفر لمصائب الهدى والمصائب الصدر يا جميع المدين اللهم اغفر لمصائب الهدى والنصارى والهندوسين والصليبيين والدار
جن بہنوں کو رحم کا مسئلہ اپنی رحم کے اوپر آپ سے کیا جائے گا جس بہن کو ملے ہیں کچھ آپ کو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 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 وما تزال الله يعلم ما تغيض الأرحام لا إله إلا الله اللهم صل على اللهم رب هذه تمام بہنیں اور بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اگر دعا مانگی جائے تو نیچے آمین اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا حي يا قيوم اشف كل معصوم ومريض يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا من حيث ما تدعى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإله إلا هو واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حسبي ربي العباد حسبي الله لا إله إلا هو حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المخلوقين حسبي الرب من المخلوقين حسبي الله بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى حسبي الله لمن دعاء ليس وراء الله الماء حسبي الله لا اله الا هو اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انا نعوذ بك من الحاسدين اللهم انا نعوذ بك من الصاحبين والقهرين والمشركين اللهم انا نعوذ بك من خازن السحر اللهم انا نعوذ بك من خازن السائر اللهم انا نعوذ بك من كل عين وبطن عين وبصر عين اللهم انا نعوذ بك من شر حاسد اللهم انا نعوذ بك من كل حاسد مرید کے میں یعنی کہ شیخو پورہ کی تحصیل مرید کے میں قرآن کے مطابق روحانی علاج کیا جاتا ہے اور یہ کرتے کون ہیں یہاں پر موجود ہیں حافظ جاوید اقبال صاحب ان سے بھی بات کریں گے لیکن یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں خواتین دوسری سائڈ پر ہے یہ جو سائڈ ہے یہ مردوں کی ہے بھائی جان کیا مسئلہ ہے آپ کو کس چیز کے لیے آئے ہیں آپ میں بس حاسدین کی وجہ سے کیا حاسدین مولوی صاحب نے مجھے بتایا گیا کہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہے میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس کی میں سونا بھی مٹی ہو جاتی ہے انہوں نے آپ کو حسد ہے حسد کہ آپ میں سے طویل دھگا کر ہیں انشاءاللہ ادھر رقیہ میں آیا کہ میں انشاءاللہ شفا ملے گی میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں اس طرح آپ کس چیز کے لیے آئے میرا جی میدے میں تکلیف ہوتی معدے میں تکلیف ہاں جی انشاءاللہ آرام ہے اگے نا پہلے سے کتنا فرق پڑا ہے ہاں جی تیجا چوتھا کتنی دفعہ آ چکے ہیں ہاں جی میں تیجی باری آیا ہاں آپ کس چیز کے لیے آئے ہیں میں جی حاجی کادے سے آئے ہو میں جی باہر دی لاما زمین چمڑی اچھا تے بڑا بھجا نسیا وا تے کدے نہیں ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ مینوں باہر دی چیز ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿੰਨਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ جنات نے مینوں چمڑے ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ کی محسوس مینوں وہ بڑا مارਦੀ ہے تے پھر مینوں نہ رات نوں انج کر دندی وچ میں مرغا پیا ہوے ਅੱਛਾ تے میرا کوئی حال نہیں چھڑدی ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ مینوں پتا مینوں ہوش بھل جاندی ہے مینوں جدوں پیڑ ہوندی ہے میرا وجود سارا انج کر دندی ہے کٹھا ਅੱਛਾ کٹھا کر دندی ہے پھر میں نہ بےدل ہو جانا وا ਅੱਛਾ مینوں بڑا ہی مارਦੀ ہے ਠੀਕ ਹੈ میں جدوں دا ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੁਣ بڑا ہی ਭੱਜਿਆ ਨਸਿਆ ਜੀ بڑے بڑے ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੱਟਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਸਾਂ ਜੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਰਾਤ ਕੱਢਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੌਂਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਤੀਸਰਾ ਤਵਾਰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੁਝ फर्क पे है? ਹੁਣ ਫਰਕ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੌ ਰਿਹਾ ਵਾਂ अच्छा, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਸੀ आए किधर हो? ਮੈਂ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨੂਰਪੁਰ ਕਮੋਵਾਂ ਦਾ ਕਰਸੀਆਲ ਬਗਲੇ ਬੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਨੂਰਪੁਰ ਕਮੋਵਾਂ ਹੁਣ ठीक महसूस कर रहे हो अपने आप? ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜੇ ਮਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਹੈ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ठीक हो गया, ठीक है। ये और साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम। क्या मसला क्या आपको? बस ये जादू असद वगैरह, जादू? आपको कैसे पता चला जादू है? बस ये काफ़ी देर से महसूस कर रहे थे मैं। अच्छा, जी, क्या महसूस कर रहे थे? उसमें जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं। अच्छा। ये कारोबार के अंदर परेशानियाँ आनी चाहिए। आपको क्या मसला हुआ था? क्या तब्दीली आई? हमने देखा कि हमारे कारोबार के अंदर हमने देखा कि वो खून के छींटे पड़ने शुरू हो गए। अच्छा, जहाँ पे कारोबार करते हो जी वहाँ पे छींटे गिरना शुरू हो गई? जी जी। किस चीज़ का कारोबार है? हमारा वो उस वक्त हम ये करते थे, रेसिपीज़ बनाते थे हम, मसाला जात। वहाँ पर यानी कि अचानक खून की छींटें पड़ती थी? हाँ, खून के छींटे पड़ने शुरू हुए। अच्छा, मुझे इसका इस चीज़ का इल्म ही नहीं था ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, तो बहुत बेहतरी है, पहले से बहुत बेहतरी है। अच्छा, हाँ, ये चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, कितनी दफ़ा आ चुके हो इधर कारी साहब? और ये तकरीबन हमारा तो अक्सर आना जाना रहता है, लेकिन ये है कि ये चीज़ जो है ना, ये जो इलाज है, ये मतलब बिल्कुल कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक है। और माशाल्लाह ये इलाज जो है बहुत ही लोग फ़र्क पड़ा यानी? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? जी मोहम्मद उस्मान। क्या मसला है? जी मैं तो अभी भाई ने दावत दी थी, मैं इधर आया था अच्छा, जी। लेकिन आप आएँ इधर देखें, मैं कुरान हदीस के मुताबिक काम करता हूँ आंखों को क्या हुआ है? जी। ये कुदरती है पैदाइशी है? जी। ठीक है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद है, बात करेंगे आप? जी, आपका क्या नाम है? अब्दुल अब्दुल रहीम, क्या मसला था? ये जादू जनात क्या मुझे जादू कैसे पता चला जादू है? मैं ना ड्यूटी करता था DGPR में। तो अच्छा भला मैं काम करता था, ज़हन काम करना छोड़ गया। कैसे? पता नहीं बस क्या जादू। महसूस करते थे? अब तो मैं काफ़ी बेहतर हो गया हूँ। काम ज़हन ही था काम करता मेरा। ज़हन ने काम करना छोड़ दिया था, दिमाग ने चीज़ें भूलते थे, क्या करते थे? सब कुछ भूल गया हुआ था। अच्छा, स्टेशन जाता था, स्टेशन से शिमला पहाड़ी। मेमोरी खाली हो चुकी थी? बिल्कुल। अब कैसी है मेमोरी? अब 50% बेहतर हो गया हूँ मैं। जी, अब मैं काम करता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। कितनी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पर? 3 बार आया हूँ। आपको क्या मसला है? आपको क्या मसला है? कमर ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਦੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ अच्छा, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਫੜਿਆ ਹੈ ਚੰਗਾ। कितने पढ़े हैं? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਇਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਈਦਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ। अच्छा, उनकी महसूस कर दे। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਆਈਦਾ ਭਾ ਨਾ ਹੋ। तो ये है जी, ये मर्द हजरात थे जिनसे हमने बात की। ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में है, कसीर तादाद है ख़वातीन की, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जब यहाँ पर पढ़ाई की जा रही थी और दवा का जो सिलसिला था जो शुरू था, तो कुछ ख़वातीन थी इक्का दुक्का जिनके ऊपर हाज़िरी उस वक़्त हो चुकी थी। और वो उस खातून से मैं सबसे पहले बात करूँगा, फिर उसके बाद जो बाकी यहाँ पर ख़वातीन हैं मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन है। आपका नाम क्या है जी? समरा बीबी। अच्छा, ये क्या मसला क्या आपको? तकरीबन 15-16 साल हो गए मुझे यहाँ। पता नहीं क्या होता है। मैं हैदर डॉक्टर को गई, उन्होंने जवाब दे दिता सी। ऊंचा बोले थोड़ा सा। मैं डॉक्टर हैदर के पास भी गई, उन्हें भी मेरे गुर्दियाँ का मसला से उधरों दिल की धड़कन तेज़ होती सी, उन्हें भी जवाब दे दिता सी। तो मेरे किसी ने बताया सी इधर आ जाओ, मैं इधर आई हूँ। तो मेरे करीबन 1 माह हो चुका है। मैं जिन्नात का साया है? हाँ, वो हाजिरी हुई थी, अभी मैं देख रहा था आपके ऊपर। मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता चला? नहीं पता। लेकिन हम देख रहे थे उस वक्त। हाँ, घर भी ऐसे कभी हो जाता है। हो जाता है। ये कब होता है, किस वक्त होता है? रात को होता है, दिन को होता है? पता ही नहीं। जब कि मैं अब दम करा रही हूँ उदों दा हो। जब कोई परेशानी हो तो हो जाता है? हाँ, बैठे बैठे भी हो जाता है। बैठे बैठे टेंशन हो या बैठे बैठे हो जाता है? नहीं है, ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। पहले ज़्यादा होता था? हाँ, डॉक्टर के पास जाती सां तो जवाब दे देंगे सब। बहुत ज़्यादा मैं इलाज करवा रही सां, कुछ भी नहीं सी आंदा, कुछ भी नहीं सी आंदा। रिपोर्ट विच भी कुछ भी नहीं सी आंदा। फिर ਜਦੋਂ मैं दम करवा रही हाँ, तकरीबन 2 माह हो चुके हैं, मैं ना डॉक्टर के पास गई हाँ, किसी के पास नहीं गई हाँ। अब पहले से कितना फ़र्क महसूस? बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल जैसे ठीक हो गई हाँ। हाँ,
बिल्कुल ठीक। महसूस हो रहा है? अब घर में ज़्यादा परेशान तो नहीं करते आप लोगों को, घर वालों को? नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी गल ना, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अच्छा, अभी ठीक हो गई हो? हाँ। अच्छा, यहाँ पर और भी खातून है, एक ये खातून है, मैं इनसे बात करूँगा, अगर वो बात करना चाहती है तो आप बात करेंगी? तभी क्या मसला क्या था आपको? बस जादू जिन्नात के ही है। जादू जिन्नात का आपको कैसे पता चला? काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मैं मुब्तला थी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर कारी साहब के पास आई तो कारी साहब ने क्या कहा? जी इनके पास आई, यहाँ पे ये सुना कलाम। अभी हम देख रहे थे ना, आपके ऊपर हाजिरी हुई थी और जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब कुछ पता चल रहा था कि आप क्या कर रही हैं? नहीं, बस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो कुछ पता नहीं तो क्या हो रहा है। जी बाकी अब ठीक है, महसूस कर रही हैं? कैसी तबीयत? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क पड़ रहा है अभी। आपको क्या तकलीफ थी? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ तकलीफ सी? कर सकते ने गल? कर सकते हो पंजाबी नहीं? चले जी। और आपको क्या मसला था? जी मैं बहुत सख्त बीमार थी, मुझ पे ब्लैक जादू किया गया था। मैंने सारी दुनिया फेरी है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, कहीं से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं हाफ़िज़ साहब के पास आई हूँ तो शुक्र है अब ठीक हूँ। मैं गुजरावाला से आती हूँ इनके पास दम करवाने। आपको कैसे पता चला ब्लैक मैजिक है? वो जब मैं जिन्नातों की वजह से चल नहीं सकती थी, मेरा कलर भी काला हो चुका था, तो फिर मैंने अपने आप को चेक करवाया तो फिर यही चीज़ तवीज़ वगैरह लोगों ने जो किए हुए थे, पुतले बनाए। किसने किए थे? ये मेरे ससुराल वालों ने। कन्फर्म है ससुराल वालों ने किए? वही क्योंकि वो सास बहुत हो गई थी ना कि ये काला इलम जो करता है वो फिर बचता भी नहीं है। वो खुद उसने कबूल कर लिया था मरते वक्त। उसने कहा था कि मैंने किए हैं? हाँ जी मैंने किया, मुझे माफ़ कर दो इस तरह कह रही। क्यों किए थे उसने? बस वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी इसलिए। जेलसी थी? हाँ जी इसलिए, क्योंकि मैं सुनहरे ख़ानदान से थी, वो राइन थे तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। अच्छा। इसलिए तो अब कैसा महसूस, पहले कैसे महसूस करती थी जब ब्लैक मैजिक करती थी? अब मैं जब से इनके पास आई हूँ, हाफ़िज़ साहब के पास, तब से मैं अल्लाह का शुक्र है अपने पाँव पे खड़ी हुई हूँ, चल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। नहीं तो मुझे अपने बच्चों की होश नहीं थी, इस तरह मेरा हाल था। अब बेहतर है पहले? हाँ जी बहुत बेहतर हूँ। अच्छा, वो जो तावीज़ किए गए थे वो निकले हैं, कोई देखे हैं आपने? हाँ जी मैंने देखे थे। अब बेहतर हो, यानी कि पहले से बेहतर महसूस? अल्लाह का करम है। पहले तो बस जैसे ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हूँ, ये बस अब मैंने बचना ही नहीं है। जब मैं इनके पास आई थी ये मेरी हालत बेहतर जानते हैं, आते ही मैं इधर गिर गई थी, यानी कि बेहोशी की हालत? हाँ जी हाँ जी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर और भी ख़वातीन है, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा से बात की जाए, लेकिन आप बताएं ज़रा मुझे थोड़ी सी, जिनकी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ये वाली? अच्छा, ये आपका क्या नाम है? फरजाना। अच्छा, क्या मसला है ना? मुझे मसला था, रात को नींद नहीं आती थी, जादू टूने का मसला था और दिमाग में टेंशन थी, ज़रा कुछ होता, बच्चों को भी नहीं देखने का दिल करता, खाम से भी नहीं बात करने का दिल चाहता। तो तकरीबन मुझे 17 साल हो गए हैं, तो मैं इनके पास आती हूँ। मेरी एक बेटी थी, अब माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। तो ये मसला हुआ है तकरीबन 10 साल हो गया, ये मसला हुआ था, मुझे नींद नहीं आती थी। तो इनके पास आई, भाई के पास आई, तो इन्होंने मुझे पता चला कि ये मसला मेरे दिमाग में जादू टूने का मसला है, उसकी वजह से। दिमाग पे क्या होता था? चीज़ें भूलती थी या गुस्सा आता था, क्या करती थी? गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आता था, दिल करता है कि बच्चों को मार दूं। नींद नहीं आती थी, चिड़चिड़ापन था, बुलाने को किसी को दिल नहीं करता, अकेली कमरे में बैठ जाती हूँ। गुस्सा नज़र आ रहा है आपको? ऐसे लगता था जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मुझे कुछ नहीं समझ लगता, जैसे मैंने ख़त्म हो जाना है, बस मेरी ज़िंदगी नहीं है, मैंने मर जाना है, ऐसी बस जहन में ऐसी बातें आती थी। अब भी आती हैं ये बातें? किसी टाइम कभी कभी आ जाती हैं। तो वैसे नाल मैं मसला है मुझे, मैं तो नाल मेडिसिन भी खाती हूँ। अच्छा चले ठीक है, वो आपका पर्सनल मामला है। और यहाँ पर और भी ख़वातीन हैं, बात करेंगी। आपको क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं, शुक्र है अल्लाह। तो फिर क्यों आई? मैं इधर आती हूँ, या मैं इसलिए इधर आती हूँ कि मेरे पीर है। अच्छा महसूस करती हैं? जी बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, इसलिए इधर आती हूँ। जी ये बच्चे भी आ गए हैं आपके? जी ये मेरी बेटी है। जी ये पाजी की। जी आपको क्या मसला है? बेटा मैं तो पहली दफ़ा आई हाँ, मेरे घर ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, मैं पहली दफ़ा आई हाँ। अच्छा हाँ जी, ਮੈਨੂੰ पहले पता नहीं ਸੀ आया, पहली दफ़ा आई हाँ। तो क्या महसूस किया इधर पहली दफ़ा आकर? अच्छा उन्होंने पढ़ाई की है, अच्छी दुआ की है। अल्लाह ताला हर किसी को शिफा दे, सानू भी किसी मगर के रब अल्लाह ताला शिफा दे। मैं तो रहन वाली भी इतने होंगे नहीं पता सी, किसी ने पुछदे पछाणदे फिर मैं इतने लैके आई हाँ। कुछ मेरे बेटी का कोई मसला सी, सिर दर्द इहदा कोई कार दे, मैनू ख्वाबां इंज होंदियां सी, मैनू काला इलम है ते तेनू कीता है कि चली जा, तू किते चली जा। मेरे घर च लड़ाई, तबाह हो गया मेरा घर,
ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਬੇਸਕੂਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਖਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਪਛਾਣਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਿਫਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਸ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ आई नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेके आई, ਅਸੀਂ तो वैसे ही पूछनियाँ पछानियाँ मामा देना आई हैं। ठीक है, तो अभी खुद भी चेक करेंगे हाफिज़ साहब एक एक को, और लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन से बात करूँ। एक और यहाँ पर बहना मौजूद है, मैं इनसे बात करूँगा। आपको क्या अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, हमने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, आप हक़ाइक़ पे अपनी बात करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आए, आपने सारा रुक़िया शरिया का ये देखा, आपने इसके मतलब सारा बताना है कि ये यहाँ पे क्या हकीकत है, ठीक है। उसके बाद मैंने तो जो देखा कारी साहब पढ़ाई कर रहे थे और आयतें थी, सूरतें थी, वो पढ़ा रहे थे, लोगों को रहनुमाई दे इसके मतलब कि ये यहाँ पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज किया जाता और लोग भी यहाँ पे आएँ, यहाँ पे कोई गलत काम नहीं होता है, ठीक है। मैं खुद मदीना मुनव्वरा से ट्रीटमेंट करवाया, मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं, आपने देखे भी होंगे, वीडियोस देखती हूँ यूट्यूब पे। तो मैं सऊदी अरब में रह के वहाँ पे मैंने खुद इलाज करवाया, मैं खुद बीमार थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उधर मैं ठीक थी। अब तो मैं यहाँ पे शौक़ से आती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि जिन्नों की महफिल, मतलब जहाँ पे कुरान पाक तलावत की जाती है वहाँ पे फरिश्ते नाज़िल होते हैं बेश, इसलिए फिर मैं यहाँ पे आती हूँ। अब क्या तबीयत कैसी है, क्या मसला मसाइल? अल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ कुरान सुनने आती हूँ। हाँ जी, अच्छा फील होता है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ख़वातीन मौजूद है, काफ़ी कसीर तादाद में है। अगर मैं एक एक से बात करूँ तो रात हो जाएगी, इतना रश है। मर्द भी ज़्यादा तादाद में थे, तमाम मर्दों से बात नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि टाइम शॉर्ट है, और कारी साहब से भी मैं बात करूँगा एंड में। अब थोड़ा सा कैमरा इस साइड पर ले ताकि मैं कारी साहब के पास आऊँ और उनसे बात करूँ। बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। और मैं यहाँ पर मौजूद था तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ ख़वातीन थी जिनके ऊपर हाज़िरी हो चुकी थी। पहले तो इसके बारे में बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि ये सिलसिला कब से शुरू है? भाई मुझे अरसा तकरीबन 22 साल गुजर चुके हैं ये काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकाम मैंने सऊदीया से सीखा है। वहाँ पर रुक़िया शरिया सेंटर हैं पूरे अरब इमारात में, हत्ता कि इमाम मशारी राशिद अल-फासी शेख सुदैस भी रुक़िया करते हैं, उनका यही तरीका है। और उसके अलावा ये जो जिन हाज़िर होते हैं, ये जब हम कुरान की सेलेक्टेड आयात जो जन्नातो शयातीन के मुतलका हैं, हाज़िरी के मुतलका हैं, इनको कत्ल करने के मुतलका हैं, कैद करने के मुतलका हैं, जब वो हम पढ़ते हैं तो फिर जन्नात शयातीन को तकलीफ़ होती है। तो यही अरबों का शरई तरीका है कि सब मरीज़ों को इकट्ठा बिठाते हैं, तो बिठा के रुक़िया शरिया पढ़ देते हैं, और उसके बाद कहते हैं कहो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला कि अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा मिलेगी। शिफा भी हमारे हाथ में नहीं है। काफ़ी अरसे से आप इस फील्ड में हैं। मुझे 22 साल गुजर गए इसका। 22 साल। अभी इस खातून के में जो हाज़िरी हुई थी, कभी आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं बाहर की, या देखते हैं, आपको नज़र आती हैं? मुझे कुछ नहीं नज़र आया। मैं अपने इल्म के तजर्बे से ही करता हूँ, झूठ मैं नहीं बोलता। किसी वक्त ऐसा हो भी जाता है, लेकिन इनको सेहरुल मशरूब माकूल का जादू था, जो जादू खिलाया पिलाया जाता है। जब इनको हम रुक़िये करते हैं तो ये उल्टियाँ शुरू कर देती थी। डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह 2 4 5 दमों के बाद ये इसकी कैफियत बेहतर है। डॉक्टरों ने इसको जवाब दे दिया था। सारा बता रही थी कि डॉक्टर के पास मैं जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी खा रही है, तो अभी तक वो इसके जिस्म के अंदर फंसा हुआ, उसके असरात हैं। जो जादू खिलाया पिलाया जाता है वो शरीत कर जाता है बंदे की बॉडी के अंदर। तो कुरान के अंदर आयात सेहरुल मशरूब व माकूल हैं, जब वो पढ़ी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह वो जिन कत्ल हो जाता है। उसके अंदर पानी जाता है, वो पिघल के जिन निकल जाता है, जहाँ से वो दाखिल होता है मुँह के रस्ते उल्टी करता है, वो निकल जाता है। अच्छा, उसमें ये मुझे ये बताइएगा, जो चीज़ खिलाई जाती है जादू के लिए और जो किया जाता है बगैर खिलाए, दोनों में कितना फ़र्क है? जो जादू खिलाया जाता है वो नजासत वाली चीज़ों के ऊपर करके खिलाया जाता है। उसका इतना नुकसान है कि उससे कैंसर हो जाता है, मैदे के मराज हो जाते हैं, बंदे का सांस बंद होना शुरू हो जाता है। टेस्ट उसके क्लियर होते हैं तो, लेकिन वो बंदे की बीमारी नहीं जान छोड़ती, वो सारी रात सो नहीं सकता। तो जो जादू वैसे किया जाता है वो जादू मुअल्लक होते हैं, लटकाए जाते हैं या मदफून किए जाते हैं। वो जिन आते हैं उसके पीछे पीछे रहते हैं, बड़ा लंबा अरसा उनको गुजर जाता है उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। अगर बंदा रूहानी तौर पे मजबूत हो, वो सुबह शाम के इज़्कार, दुआएं, तलावत, नमाजें, सारे मामले ठीक हों उसके, तो जिन का उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। अच्छा, कौन से जो लोग हैं, ख़वातीन है या मर्द है, जिनके ऊपर ज़्यादा असर, बहुत जल्दी असर कर जाता है जादू, और वो लोग भी बताइएगा जिनके ऊपर असर ही नहीं किया जाता जादू का?
जो लोग सुबह शाम के इज़कार करते हैं, तलावत पाबंदी से करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ये मोमिन के लिए किले का दर्जा रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिससे हम बच सकें। जो बंदा अल्लाह की पनाह तलब करता है वो बच जाता है, जो नहीं करता, औरतों के मसाइल का तो आपको पता है कि सारे कामों में इनके अंदर कमी कुताही है, तो इनको नज़र भी ज़्यादा लगती है, हसद भी इनके ऊपर ज़्यादा, इनके अंदर कंपटीशन है। किसी शादी में गई तो उधर जाकर अपनी चीज़ों को दिखाना शुरू कर दिया तो हू पड़ जाती है, उससे कर वो बंदे बीमार हो जाते हैं। तो बड़ा बड़ा लंबा अरसा उनको पता ही नहीं चलता, उनकी तशखीस ही नहीं होती कि ये मरीज़ किस किस्म के हैं। नज़रबद क्या चीज़ है और ये भी क्या जादू से ज़्यादा तेज़ असर करती है, ये इसको थोड़ा क्लियर। जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद की वजह से ऊँट हांडी में और बंदा कब्र में चला जाता है। कैसे कि बंदे को नज़र लगी वो गिरा और कब्र में, ऊँट को नज़र लगी वो गिरा छुरी फिरी हांडी में। तो एक सहाबी और रसूल को नज़र लगी तो दूसरे सहाबी ने उसको फिर वज़ू करके पानी दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया अपने भाई को क्यों हलाक कर रहे हो। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीका साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा ऐसी दुआएं मिलती हैं नज़र हसद के इखराज के लिए, वो मैंने दम के अंदर पढ़ी हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तजीरुका मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बड़ी मुजरब है, जिसको नज़र हसद का मसला वो पढ़ें, आखिरी 3 जो मुआवज़तैन हैं वो पढ़ें, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह नज़र उसके करीब ही नहीं आएगी। अभी जो आप पानी सब पे छिड़का रहे थे, वो पानी क्या दम किया हुआ था और उसका क्या फ़ायदा है? जी ये जो पानी है ये इसके ऊपर हम सूरह साफ़ात की पहली 10 आयात पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और अपना रुक़िया शरिया किया होता है। जो जिन्नात शयातीन इंसानों के गला दबाते हैं, सांस दबाते हैं दौरान दम, तो मरीज़ का सांस तंग होना शुरू हो, इसलिए हम वो पानी उसके ऊपर शावर करते हैं। वो जिन्नात को तकलीफ़ होती है वो भागते हैं फिर छोड़ के, उनके जो मखसूस प्रेशर पॉइंट होते हैं ना चेहरे के ऊपर, ये वाला और ये इनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते हैं ताकि ये इसका ज़ोर टूट जाए, मरीज़ उठ के भागे ना और मरीज़ को दौरा ना पड़े, ताकि ये जो मजलिस है इसका माहौल ना ख़राब हो। ये जो हमारी बहन बैठी हुई है इसको ज़्यादा मसला था जब ये आई थी और अब कैसी मसला, इसको बड़े शदीद दौरे पड़ते थे। इसके साथ एक बहन भी थी, उसको मसला आशिक का मसला था, उसका हमने इंटरव्यू भी लिया और जिन ने खुद ये बात कही, इसको पूछ ले, जिन ने खुद कहा कि मैं इसके साथ मेरा तल्लक है, मैं आया जादू से हूँ और इसकी खातर मैं जिन्नों के साथ भी लड़ाई लड़ता हूँ, इसको मैंने नहीं छोड़ना। फिर घर जाके उसने मुझे फ़ोन किया, उसने कहा मैं जा रही हूँ, जो करना कर लो। वो भागी यहाँ से, इसको पता है वो भागी, फ़ोन करके वो चली गई यहाँ से, वो नहीं आज तक यहाँ पर आई, तो आई नहीं दोबारा। उसके साथ आशिक जिन थे और ज़्यादा ख़तरनाक होता है, ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। औरतों के रहम की जितनी बीमारियाँ ये आशिक जिन्नों की वजह से। तो क्या ये मौत की तरफ लेकर जाती है इंसान को या बीमार ही रहते हैं? बहुत ज़्यादा जब बंदा बीमार होता है, उसकी नींद ख़राब होती है, असाबी तौर पे वीक होता है, तो आस्ता आस्ता वो इनकी वजह से, जिन्नात की वजह से, शयातीन की वजह से, नज़र असद की वजह से हलाकतें होती हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, इसको दिमागी मसला है, इसको थोड़ा सा क्लियर करें भाई। इसके लिए ये है कि इधर मेरे पास ऐसे केस आते हैं 10-10 साल 20-20 साल हो गए, वो दवाइयाँ खाते हैं, कुछ भी नहीं उनको समझ आती। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको तलबीना खिलाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलबीना बेशक हर गम और हुज़न को ख़त्म करता है। हम जब देते हैं दूसरे दिन उनकी नींद ठीक हो जाती है, गम हुज़न ख़त्म हो जाता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के नबी जिस भी आसमान पे गए तो अल्लाह के जिब्रील ने हुक्म दिया कि मेरे नबी तलबीने से अपनी उम्मत का इलाज करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी दुआएं साबित हैं, ऐसी चीज़ें, दुआएं और ख़ुराकें साबित हैं जो जब हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ये जिन्नात शयातीन की कमर टूट जाएगी। अभी किसी जिन से बात कर सकते हैं? नहीं, मैं तो हाज़िरी बार बार नहीं करवाता, वैसे भी नहीं करवाता, मैं हाज़िरियों के वैसे भी ख़िलाफ़ हूँ। कुरान पढ़ते हुए को जिन आ जाए तो ठीक है, हाज़िरियों का मैं कायल नहीं हूँ। कुरान पढ़ते हुए जिन के ऊपर जिन आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने दुश्मन से मुलाकात की ख्वाहिश मत रखो, वो बड़ा गंदा और पलीत है, उससे मैं भी नहीं मिलना चाहता, तुम भी मिलने की ख्वाहिश न रखो। जो पीर फकीर ये रखते हैं ना कि हाँ हाज़िरी करें, लोगों को दिखाएं, मैं चीज़ का कायल नहीं। आपको कैसे फिर पता चलेगा कि वो जिन जो है वो चला गया है? वो जब हम आयातुल खरूज पढ़ते हैं ना, काला फ़खरुज मिनहा फ़इन्नका रजीम उखरुज मिनहा मज़ूमा मदहूरा उखरुज या अदुव्वल्लाह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, या माशरा जिन उखरुज या अदुव्वल्लाह, के निकल अल्लाह के दुश्मन। जब वो पढ़ते हैं तो मरीज़ नॉर्मल हो जाता है, हमें पता चल जाता है, उसकी हालत अपनी जगह पे आ जाती है कि ये मरीज़ चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो हमारे मुल्क में जो परेशानियाँ हैं, घरों में टेंशनें हैं, बहुत से मसले मसाइल हैं, कुछ मशवरा दीजिएगा हमारी बहनों के लिए और भाइयों के लिए कि ऐसा कौन सा अमल किया जाए ताकि हम लोग परेशानियों से बचें। और बहुत ज़्यादा टेंशनें हमारे इस मुल्क में हैं, हमें भी सोशल मीडिया पे बड़े मैसेजेस आते हैं, हमारा ये मसला है, हमारे अंदर जिन्नात है, ये हो गया वो हो गया। कोई ऐसी चीज़ बताइए, कोई ऐसा मशवरा दें ताकि लोग जो है वो ठीक हो जाएं।
इसमें भाई इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि सूरत बकरा की तिलावत करें। सूरत बकरा की भरपूर तरीके से सुबह शाम अपने आप को तंग ना करें कि सारा दिन में कई मरतबा पढ़, नहीं, सुबह शाम पाइया पाइया आधा पाओ उसको पढ़ने की आधा पारा अपनी आदत बनाएं। इंशाअल्लाह ताला जादू का जोर टूट जाएगा। इससे कर्ज़ों के मामलात भी दुरुस्त हो जाते हैं, सेहत भी ठीक हो जाती, तकरीबन सारे ही मसाइल ठीक हो जाते हैं। जो मुस्तकिल अपनी नमाज़ें ठीक करेगा, इज़कार सुबह शाम के ठीक करेगा और तलावत की पाबंदी करेगा, इंशाअल्लाह उनके घर से सारी ज़हमत ख़त्म हो। अब ऐसी फैमिलियां हैं जो बाहर आपको देख रही हैं, इंग्लैंड हो गया, यूके, यानी कि यूरोप वाली साइड पर, उनके लिए आपके लिए क्या मशवरा है, वो क्या करें? वो उन इलाकों के अंदर तो बहुत ज़्यादा नज़र असद और सहर है। जो लोग बाहर हैं, मेरा तजर्बा है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जादू किया जाता है। एक बंदा कमाने वाला होता है, जिसको मतलब होता है वो जादू करा देता है। उनको चाहिए सुबह शाम के इज़कार करें, तलावत करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, और जहाँ पर सही शरई अमल है, रुक़िया तो शरिया करने वाला, वो अमल जो बावाज़ बुलंद दम करता हो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम करने वाले सारे अपने ऊपर पेश किए। जो लोग बातिल दम करते थे, अल्लाह के नबी ने उनको मना कर दिया कि ये दम में शिरक है, वो नहीं करना। जो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताई हुई दुआओं से दम करता है, वो दम करना कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा, कि हमने कुरान को रहमत और शिफा बना के उतारा है। यहाँ आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अक्सर इस तरह के प्रोग्राम करता हूँ, छापे मारता हूँ पूरे पाकिस्तान में, तो मैंने अक्सर देखे हैं, मैंने आमिल को पकड़ा भी है, अंडे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये क्या सूरत, ये क्या सीन है? और उन लोगों को मैसेज दीजिएगा जो इन लोगों के हथकंडों में आ जाते हैं। भाई इसके लिए इलाज का जो शरई तरीका है वो यही है, जैसे मेडिकल में एक डॉक्टर मरीज़ की तशख़ीस करता है ना, अगर उसको नज़र लग गई तो नज़र की अलामात हैं, वो जब हम सारी देखते हैं इनके अंदर क्या क्या अलामात पाई जाती हैं, फिर उसकी तशख़ीस मुकम्मल होती है। हम फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दुआएँ और कुरान की जो नज़र हसद के बारे में सिलेक्टेड आयात हैं उनके ऊपर पढ़ते हैं। पहली ही रुकिये में इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वो बंदा ठीक हो जाता है। ऐसे जादू की भी हम तशख़ीस करते हैं, उसकी अलग अलग हिस्ट्री है। फिर जैसा जादू होता है वैसे ही उसको ख्वाब आना शुरू हो जाए। अगर कब्रस्तान का जादू है तो कब्रस्तान के मुतल्लिक़ ख्वाब, अगर पानियों का जादू है तो पानी के बारे में, क्योंकि पानी की मखलूक उसके ऊपर आती है। ऐसे इंसानों को ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। उससे हमें पता चलता है, ये जो बंदे आंखें बंद करके हिसाब लगाते हैं, कपड़े लेके आ जाते हैं कि ये देखो सुंगो भाइयों, ये शरई अमल नहीं। जो अंडे पकवाते हैं, गोश्त पकवाते हैं, हाथ देखते हैं, इस्लाम में शरई तौर पे मैं उनको बुरा तो नहीं कहूँगा, मुसलमान भाई हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे, वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ। अगर उनको नहीं काम आता मेरे पास है, मैं इंशाल्लाह उनको सिखाऊँगा। लोगों के लिए खैर का काम करें, करना चाहिए, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये शरई तरीका नहीं है। पूरे अहले अरब में ऐसे रुकिया होता है। आप प्ले स्टोर के ऊपर रुकिया तो शरिया लिखें और चेक। भाई हमारा सिलसिला कोई नहीं, वही सिलसिला है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इससे हट के हम किसी सिलसिले को मानते ही नहीं। वो शरई तौर पे हम अपनी ज़ात की तो बात ही नहीं करते, ना हम कभी करेंगे। तो जो शरई तरीका है वो ही करेंगे, उससे हट के कम नहीं। ना कभी हमने आज तक किया, कोई भी मरीज़ हमें साबित करवा दे, कभी हमने तवीज़ नहीं दिए, कोई ऐसा मामला किया ही नहीं, ना किसी को गैर शरई काम बताया है। तो हमारा सिलसिला यही है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा रुकिया है, हम वो ही करते हैं। अहले अरब में यही तरीका है। तो दूसरा मेरे इदारे का नाम है रुकिया तो शरिया मिनल कुरान व सुन्ना। इसी नाम से सऊदी अरब में अशूनुल इस्लामिया मरकज़ दावा वाल इरशाद रुकिया शरिया मिनल कुरान व सुन्ना के नाम से पूरे अरब इमारात में सरकारी तौर पे ये रुकिया सेंटर है। वहाँ पर बगैर सर्टिफिकेट के कोई बंदा दम नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, मैं कतर हमद मेडिकल के अंदर मैंने ये काम करता रहूँ रुकिया सेंटर के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े अरब लोगों को भी रुकिए किए। काफ़ी तादाद में ख़वातीन भी है, मर्द भी है, तो इनको एक एक करके आप दोबारा से दम करेंगे या आपने कर दिया जो हो गया था? जो मैंने दम किया, ये इज्तिमाई रुकिया होता है, ये सबसे ज़बरदस्त होता है। कुरान क्योंकि पढ़ना सुन्नत है और सुनना फ़र्ज़ है। अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमाते हैं कि कुरान जब पढ़ा जाए गौर से सुनो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम कर दिया जाए। यही असल मसला है। जब हम सुनेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला शिफा देगा। इसके लिए जो बीमार हैं, मैं अलहदा से भी एक एक करके मरीज़ों को जो चाहे इनफरादी तौर पर मेरे से इलाज करवाने के लिए मैं उनको बुलाता हूँ, वो आए, मेरा दारुल इलाज खुला होता है। लेकिन हर त्योहार के त्योहार हम फ़ीस बिल्ला इज्तिमाई रुकिया करते हैं। 15 दिन मैं इधर बैठता हूँ, 15 दिन कराची क्लिफ्टन के अंदर मैं बैठता हूँ, वहाँ पर रुकिया करता हूँ। वहाँ पर भी मेरा कोई भी नहीं होता, मैं खुद ही करता हूँ, क्योंकि ये जिन्नात का काम है। ये सीखते सीखते बंदे की उम्र गुजर जाती है। एक शफीक भाई हैं, मेरे साथी हैं, अभी सीख रहे हैं। इनकी भी हमशीरा मरीज़ थी 30 साल से, उसका जादू हमने इस कब्रस्तान से पटवाया है। वो खुद मरीज़ गया है, कब्रस्तान पटवा के उसने निकाला, वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है।
मेरे यूट्यूब का चैनल का नाम है ये इदारा रुकिया शरिया मिनल कुरान राकी हाफिज़ जावेद इकबाल के नाम से है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे जी हाफिज़ जावेद इकबाल साहब। आपने सारी सूरत हाल देखी, हमने पूरे सेंटर को दिखाया, ख़वातीन से भी बात की, मर्दों से भी बात की और एक एक से बात की। हमारी कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, आप तक उनके हक़ाइक़ पहुँचाएँ। और आपने देखा भी जब कारी साहब तिलावत कर रहे थे तो तब ख़वातीन के अंदर और मर्द कुछ हज़रात थे जिनमें हाज़िरी हो चुकी थी। जिन्नात का साया होता है, जादू होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसका इलाज यहाँ पर इस सेंटर में रूहानी तरीके के साथ किया जाता है, यानी कि आयतों से और उसके साथ साथ सूरतों से कुरान के मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। तो मेरे साथ एक और शख्स यहाँ पर मौजूद है जो शागिर्द हैं आप? जी जी। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कारी साहब के बारे में। आपकी सिस्टर को भी मसला था? जी, ये मेरी सिस्टर हैं बड़ी, उनको अरसा 30 साल से मसला था और हमें कोई पता ही भी नहीं था। उनका बीपी बहुत हाई रहता था, तक डॉक्टरों ने कहा था इनका इलाज जो है ना ऐसा भी हो सकता है इनको फालिज हो जाए या इनको हार्ट अटैक हो जाए। तो मेरी वाइफ थी, उसको ना बहुत डरावने भयानक ख्वाब आते थे। वो मुझे अक्सर कहते थे मुझे ना ऐसे ख्वाब आते हैं। मैंने कहा कि ऐसा करें आप किसी कहीं से दम करवा लें। नहीं जी, मुझे लेके चलें। वो फिर मैंने ऐड देखा था आप साहब, तो ऐड देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इनके पास जाते हैं। जब इनके पास आए हैं तो बाद में मेरी सिस्टर भी आई है, तो उस पर हाज़िरी हो गई। मैं साथ नहीं था उस वक़्त, लेकिन इन्होंने ना छोटे छोटे क्लिप बना के मुझे भेजे। फिर मैं आया हूँ, फिर मैंने बात की आप साहब से कि ये क्या मसला है। वो फिर मेरे सामने सारा डिटेल खुल गई। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कहने लगे कि आप इसके साथ जाओ और ये निशानदेही करके आओ। कहाँ की निशानदेही करवाता है? मैं उसके साथ गया, अकेला ही था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या डरना इनसे। अब वो साथ गया, ये साथ ही तावीज़ वगैरह निकाल लिए? वही बताने लगा हूँ। कब्रस्तान गया हूँ पहले दिन, वहाँ उसने निशानदेही करवाई, वापस आ गए। अगले दिन जब जाना था उसने उसकी तबीयत ख़राब कर दी। असल में मेरे साथ घर के साथ ही ना जादूगर है, ईसाई जादूगर है। उस खबीस ने उस पर ऐसा जादू किया, वो उठने का नाम नहीं ले रही थी। उसने क्यों किया था? बस उसको वो कुछ रिलेटिव हैं जिन्होंने करवाया। अब ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा हुआ कि जब मैं उनको लेके आप साहब के साथ हम गए हैं, पूरे एक वर्किंग के साथ गए हैं, जब वहाँ से खोदना शुरू कर दिया तो उसने वो बहुत यानी कि बताया कि ना करो ना करो, बहुत चीखो पुकार की, ना करो, इसको मैं मार दूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा। जब वो निकाल दिया, बातल हो गया। अल्लाह ने बहुत करम किया कि बातल होने के बाद खुद मेरी सिस्टर ने बताया कि मुझे ख्वाब में पता चला है कि कुछ जो चीज़ें हैं ना वो जा रही हैं और कह रही हैं कि अब हमें आज़ादी मिल गई और अब हम जा रहे हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये हालात है जी सेंटर की, और मैंने काफ़ी लोगों से बात की, ख़वातीन से भी बात की। अब इलाज की अभी कंटिन्यू है, यानी कि दम भी किया जा रहा है, लेकिन आज के सच तक